ٹھیک بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدوں و مصلیًا اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، رب کا احسان ہے کہ اپنے مقدس گھر میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ ہم لوگ جو یہاں اکٹھا ہوئے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کے نتیجے میں، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو خالی ہی، ان کے یہاں کسی طرح کی کوئی مصروفیت نہیں ہے، لیکن اب اللہ توفیق نہیں دے رہا ہے، مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، مسجد سے انہوں نے اپنا ناطہ پورے طور سے توڑ لیا ہے۔ یہ بھی بغاوت اور سرکشی کی ایک قسم ہے اور ایک شکل ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو جوڑ کے رکھا ہے اپنے مقدس گھر سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، پیارے پیغمبر آپ نصیحت کیجئے، لوگوں کو سمجھائیے، واعظ کیجئے، اس لیے کہ نصیحت ایمان والے بندوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو دل ہیں ہمارے آپ کے، یہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں جب قرآن و سنت کی قیمتی باتیں، مفید باتیں ہوتی ہیں تو دلوں پر چڑھنے والے جو زنگ ہوتے ہیں دھیرے دھیرے زائل ہو جاتے ہیں۔ انسان کے قلوب، ان کے دل مصفہ اور مجلہ ہو جاتے ہیں۔ کتاب و سنت کی باتیں پھر انسان کے دل و دماغ کو متاثر کرتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر آپ نصیحت کیجئے، نصیحت سے ایمان والے بندوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ نصیحتی جو باتیں ہوتی ہیں نصیحت پر مبنی، واعظ پر مبنی، یہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے۔ آج میں کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، آپ کے سامنے اپنے اندر، اپنے بھائیوں کے اندر، اپنے مسلمان دوستوں کے اندر جو بڑی خامیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے چند خامیوں کی طرف میں آپ اشارہ کروں گا، اور اس لیے اشارہ کروں گا، اس لیے ان کی طرف رہنمائی کروں گا تاکہ اصلاح ہو۔ کیونکہ لا علمی کی بنیاد پر ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غلط کام کو بھی کر بیٹھتے ہیں، حرام اور ناجائز چیز کو بھی کر بیٹھتے ہیں انہیں حلال اور جائز سمجھتے ہوئے۔ پہلی گڑبڑی ہمارے یہاں جو پائی جاتی ہے، جس کا ذکر مجھے لگتا ہے کہ تمام مسجدوں میں ہونا چاہیے، جمعہ کے خطبے میں ہونا چاہیے، دروس میں ہونا چاہیے، 15 روزہ ماہانہ جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں ہونا چاہیے۔ دیکھیے نماز پڑھ رہے ہیں بہت سارے لوگ، روزہ رکھ رہے ہیں، دین سے کسی نہ کسی حد تک جڑے ہوئے ہیں، حج بھی کچھ لوگوں نے کیا ہے، بیت اللہ کی زیارت کے شرف سے بھی بہت سارے لوگ مشرف کیے ہیں، لیکن ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ پورا علاقہ، پورے علاقے میں آپ کو مجھے لگتا ہے چند لوگ ایسے ملیں گے، شاید ہو سکتا ہے ملیں، کہ جو نماز بھی پڑھتے ہوں، روزہ بھی رکھتے ہوں، جنہوں نے حج بھی کیا ہو، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں، اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کو حصہ دیا ہو۔ یہ حصہ دینے والی جو بات ہے یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم لوگ نماز روزہ سب کچھ کر کے، ان کا اہتمام کر کے یہ سمجھتے ہیں ختم ہو گیا، شادی میں 10 لاکھ 5 لاکھ دے دو، 200-400 باراتیوں کو بلا دو اور خوب کھلا دو پلا دو، ختم۔ اس کے بعد سے اب صرف عید میں تہواری دینا ہے، رمضان کے موقع پر، عید سے پہلے بچیوں کو، بہنوں کو تہواری بھیجوا دو، خلاص۔ یہ سب سے بڑی کمی ہے، اتنی بڑی کمی ہے دوستو کہ آپ کی نمازیں بیکار ہو جائیں گی، آپ کے روزے بیکار ہو جائیں گے، زکوٰۃ و حج یہ کچھ کام نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ حق مار رہے ہو۔ بیٹیوں کے حق مارنے والے کتنے ایسے ہیں جو نماز کے پابند ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، کسی نہ کسی حد تک وہ مسجدوں سے جڑے ہیں، لیکن وہ حق نہیں دے رہے ہیں۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ اگر اپنی بیٹیوں کا حق دیں گے، آپ کی موت کے بعد آپ کے بچے کنڈلی مار کے سانپ کی طرح آپ کی جائیداد اور پراپرٹی پر بیٹھ نہیں جاتے، تو یہ سمجھ لو بہت شرف کی بات۔ بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں، زندگی میں آپ اپنے بچوں کو سمجھا دیجئے، بتا دیجئے۔ لوگ کہتے نا اپنے باپ کا اکیلا بیٹا ہے، 4 بیٹیاں بھی گھر میں ہیں، کہتے ہیں اپنے باپ کا ایک لوتا ہے، یہ ایکٹھا ہے، یہ
एकलौता है, पूरी प्रॉपर्टी का ये मालिक हो जाएगा। ये शैतानी अमल है, याद रखो मेरे दोस्तों, हराम अमल है जिसको हम और आप सबके सारे के सारे लोग मिल करके अंजाम दे रहे हैं। नाम है अहले हदीस का, नमाजों की पाबंदी, दीन से किसी न किसी हद तक लगाव है, लेकिन अपनी बहनों का हक हम लोग मार लेते, बेटियों का हक नहीं देते। ये हक बच्चियों को मिलता कब है? बाप की वफात हो गई, बाप ने अपनी जिंदगी में जो कुछ बनाया है, कमा के रखा है बाप ने, प्रॉपर्टी की शक्ल में, जमीन की शक्ल में, खेती की शक्ल में, घर बार की सूरत में, जो कुछ भी है, मां के पास जो कुछ है जेवरात की सूरत में, पेट काट काट करके मां ने जो पैसे जमा किए, बाप की वफात हो गई, मां की वफात हो गई, अब प्रॉपर्टी तकसीम होगी। बाप की वफात के बाद जब प्रॉपर्टी तकसीम होती है तो तीन भाई हैं, तीनों लेके बैठ गए, बेटियां भी हैं, बेटियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है, कहा जाता है वो क्या शादी हो गई, मौलवी साहब अच्छे घराने से ताल्लुक रखती हैं, खाती पीती हैं, वो कहती हैं हमको नहीं चाहिए, उनका हक है, आप वो हक मत लो, आप उनको दीजिए, उन तक पहुंचा दीजिए, वरना अल्लाह के यहां पकड़ हो जाएगी। आपकी अच्छाइयां, आपके नेक अमाल आपको निजात नहीं दिलवा सकते, याद रखो। इतनी खतरनाक बात कुरान अजीज के अंदर आई है शनात के हवाले से ऐसे लोगों के कि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। यहां तक अल्लाह कह रहे हैं कि ऐसे लोग हमेशा हमें जहन्नम में रहेंगे, जो हक मारने वाले लोग हैं हमेशा हमें जहन्नम में रहने वाले हैं। इतनी सख्त बात अल्लाह ने कही थी। मां का इंतकाल हो गया, मां के जो जेवरात होता क्या है, वफात के बाद कोई एक जिम्मेदार बनता है और झाला माला जितना है उठा के दे दिया, इनका हो गया, इनका हो गया, नहीं, बराबर बराबर हिस्सा लगेगा। बाप की वफात के बाद बेटों का हिस्सा है, बेटियों का हिस्सा है, जमीन में, जायदाद में, खेती में, बैंक बैलेंस जो बाप ने किया उसमें। और अगर मरने वाले की बीवी जिंदा है यानी बच्चों की मां, तो उसका भी हिस्सा 1/6 बेटों का हिस्सा है, बेटियों का हिस्सा है। औरत पहले मर गई तो उसने जो कुछ बतौर महर के अपने पास रखा है, जो कुछ उसको मिला है शौहर की तरफ से, माँ बाप की तरफ से, बचा बचा के जो कुछ उसने जमा किया है उसमें हिस्सा लगेगा। शौहर जिंदा है, शौहर को दिया जाएगा, उसके मरने वाली औरत के, उसके जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको भी दिया जाएगा। उस मरने वाली औरत के माँ बाप कहीं हैं, वो भी दुनिया में है, तो उनका भी हिस्सा लगेगा। मैं सिर्फ बच्चियों के हिस्से की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं, जिसके हवाले से हमारे यहां बड़ी बेइतदालियां। हम लोग जानते ही नहीं कि बच्चियों को हक देना चाहिए। कहते शादी हो गई, शादी कर दिया, जहेज दे दिया, गाड़ी दे दिया, खत्म हो गया, तो कह रही है कि हमने माफ कर दिया। उसके माफ करने से कुछ नहीं होगा, ये जबरदस्ती की बात है। कुछ बेचारी बहनें डरती हैं, बोल देती हैं हमने माफ कर दिया, ऊपर ऊपर से 10 लाख 20 लाख 25 लाख कोई माफ वाफ नहीं करता है। याद रखो, 2-4 हजार यहाँ गांव देहात में लोग माफ नहीं करते, और 20 लाख की प्रॉपर्टी वो बहन कह रही कुछ नहीं चाहिए अपने को। वो डरती है, त्योहारी देना भी बंद कर दोगे आप, वो डरती है आना जाना भी छोड़ दोगे आप, वो डरती है कि रिश्ता नाता पूरे तौर से मुनक़ता हो जाएगा। उसका खौफ है उसे, उसका डर है उसे। ये किसी पर तान नहीं, असल में ये ऐसा मौजू है कि इस मौजू पर गुफ्तगू तकरीबन हर मस्जिद में होना चाहिए। जितनी जाहिलियत हमारे इस इलाके में है, इस हवाले से शायद कहीं हो। मुंबई में आप देखें, शेख मोहतरम हमारे जाते हैं, मुतअद्दिद बार इनके असफार होते हैं, वहां पहुंचते हैं, वहां के जो कोकनी लोग हैं, रहवासी वहां के, एक एक चीज में हिस्सा देते हैं। गाड़ी में भी हिस्सा, बाप ने जो गाड़ी खरीदी थी उसमें बहनों का भी हिस्सा है, बेटों का भी हिस्सा है, यानी भाइयों का, हर चीज में वो लोग हिस्सा देते हैं। मऊ के बाज इलाके में, बनारस के बाज इलाके में, वहां लोग हिस्सा देते हैं। हम अहले हदीस हैं, हम कहते हैं हिस्सा नहीं हमारे यहाँ। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, सूरह निसा में, लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबूना,
मर्दों के लिए मर्द लोग, लड़के मर्द, जब इनके माँ बाप दुनिया से चले जाएं, करीबी रिश्तेदार दुनिया से चले जाएं, तो जो कुछ उन्होंने माल छोड़ा है उस माल में मर्दों के लिए हिस्सा है। अल्लाह कहते हैं सूरह निसा की 7 नंबर की आयत करीमा, वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबूना, ऐसे औरतों के लिए भी हिस्सा है, बहनों के लिए भी हिस्सा है, आपकी बेटियों के लिए भी हिस्सा है। अल्लाह फरमाते हैं माँ बाप जब दुनिया से चले जाएं तो जैसे मर्दों के लिए हिस्सा है उनकी छोड़ी हुई प्रॉपर्टी में, उनके तरीका में, ऐसे ही लड़कियों औरतों के लिए भी हिस्सा है। अल्लाह कहते हैं माल चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, अगर बाप की वफात के बाद प्रॉपर्टी आधा बीघा ही है, चलो कुछ और नहीं, उस आधे बीघे की कीमत लगाओ आप, मौजूदा वक्त में उसका रेट क्या है, रेट निकालो। 4 भाई हैं, वो चारों भाइयों में तकसीम करो, बहनें हैं उनमें तकसीम करो, जो शख्स मर गया है उसकी बीवी अभी जिंदा है यानी बच्चों की मां, उसमें भी तकसीम करो। और जिंदगी में हिस्सा उसका नहीं होता है, याद रखो। बहुत सारे लोग खुशो खुर्रम बच्चों से कहते बहुत लगाव है, बड़े वफादार बच्चे हैं, और जिंदगी में बांट उठ के बिल्कुल कर देते, बांट के कंप्लीट कर देते, और पता क्या चला, बड़ा लड़का भी नहीं पूछ रहा है अपने बाप को, और बीच वाला भी नहीं पूछ रहा है, और छोटा वाला भी नहीं पूछ रहा है। जिंदगी में प्रॉपर्टी मत दो, ज्यादा तंग करो, उठाओ डंडा भगाओ, घर से बाहर करो, जाए कमाए खाए रहे। आपने पढ़ा दिया, शादी कर दिया, जिम्मेदारी आपकी खत्म हो गई, जिंदगी में कोई हिस्सा नहीं। जिंदगी में अगर कोई हिस्सा दे रहा है तो वो एज ए गिफ्ट है, हदिया है, वो तोहफा है, वो उसमें लड़के लड़कियां दोनों बराबर। अब एक शख्स है यहां, वो चाहता है कि अब्बा हम दुकान खोलना चाहते, हमारे पास पैसा नहीं, हमारी चाहत है कि हम एक कारोबार शुरू करें, आप जमीन बेचकर या जो कुछ रखे हो 2-5 लाख रुपया हमें दे दो। अब उसके 2-3 भाई भी हैं, 2-3 बहनें भी, एक डिमांड कर रहा है कि जिंदगी में अब्बा हमें कुछ दे दो, शमीम साहब मांग रहे हैं कि अब्बा दे दो। उनके अलावा भी कई भाई हैं, कई बहनें हैं, तो अगर एक बेटे को आप दे रहे हो उसकी मजबूरी की वजह से, सारे बेटों को बराबर सराबर, सारी बेटियों को बराबर सराबर जिंदगी में देना है, एज ए गिफ्ट है ये, जिंदगी में तफरीक नहीं कर सकते। 5 लाख अगर उनको दिया गया है तो उनके जितने भाई हैं, जितनी बहनें हैं, सबको 5-5 लाख दिया जाएगा। अगर कोताही किया तो आप जालिम और जाहिर ठहरेंगे, याद रखो। आप दुनिया में भी गिरफ्त हो सकती है अल्लाह की, और मरने के बाद तो पकड़ ही है, याद। तो जिंदगी में जब देगा कोई भी बाप, कोई भी मां अपने बच्चों को, तो उसमें बराबरी होनी चाहिए। लेकिन मौत के बाद जो असल तरीका है, जो कुछ बाप ने छोड़ा, मां ने छोड़ा, उसकी मौत के बाद जब प्रॉपर्टी तकसीम होगी तो ये नहीं कि सिर्फ खेत बांट दो, तो घर का भी हिसाब होगा। आपके पास 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, उनका भी हिसाब होगा अगर अब्बा ने उसको कमा के दिया है। दुकान है, बेकरी है, कुछ और है, हर चीज का हिसाब होगा, और उसमें लड़कों का डबल होगा और लड़कियों का सिंगल होगा। याद रखो इसको। अल्लाह ताला कुरान में क्या कह रहे हैं कि मर्दों के लिए भी हिस्सा है, उनके वालिदैन, करीबी रिश्तेदार जो कुछ छोड़ के जाते हैं उसमें, और लड़कियों और औरतों के लिए भी हिस्सा, माल चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, इससे कोई लेना देना नहीं। और मुतय्यन हिस्सा है, नसीब मफरूबा, मुतय्यन हिस्सा। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है कि हम लोग नमाज भी पढ़ते हैं, हम लोग ज़कात भी देते हैं, किसी न किसी हद तक मस्जिदों से जुड़े हैं, और अपने बच्चियों के हक पर हम लोग डांका डालते हैं, डाकू बन गए। सिर्फ बेटों को हम लोग तरजीह देते हैं और उनमें पूरी प्रॉपर्टी तकसीम करते हैं, बच्चियों को पूरे तौर से नजरअंदाज कर देते हैं। कहते शादी तो कर दिया, तो बेटे की भी शादी तो आपने कर दी, बेटे को भी आपने पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, तो बच्चियों को नजरअंदाज मत करो। अल्लाह क्या कहते हैं, तिल का हुदूदुल्लाह, हिस्से बताकर सूरह निसा की 7 नंबर की आयत करीमा से अल्लाह ने हिस्सों का जिक्र शुरू किया है, और 14 पर जाकर के वो बातें खत्म हो जा रही। आयत नंबर 14 पर 13 नंबर की आयत करीमा में अल्लाह क्या कहते हैं,
सारे लोगों का हिस्सा बताकर, बीवी का इतना है, शौहर का इतना है, सबका हिस्सा बताया, सबका हिस्सा, सबका हिस्सा, बीवी का, शौहर का, माँ का, बाप का, सबका हिस्सा बता के, और आगे चल करके 13 नंबर की आयत करीमा में अल्लाह कहते हैं तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह के हुदूद है, इनको फला दो मत, इनसे आगे ना बढ़ो। जो उसूल और जो ज़ाब्ते बताए गए हैं, जो हिस्से बताए गए हैं कुरान में, उन हिस्सों को अल्लाह क्या कहता है, ये हुदूदुल्लाह है, ये अल्लाह की हदें हैं। वमन युतिइल्लाह व रसूलह, और सुनो, जो अल्लाह का कहा मान जाए, अल्लाह की बात जो शख्स मान जाए, अल्लाह क्या कहते हैं, अल्लाह की बात मान ले, जो रसूल की बात मान ले, हिस्सों के हवाले से जो हिस्से बताए गए, यानी उन पर अमल करे, उन हुदूद से आगे ना बढ़े, जो हिस्से मुतय्यन कर दिए गए हैं वो हिस्से दे, मुस्तहिकीन तक पहुंचाए। और अगर पहुंचा रहा है तो गोया अल्लाह की बात मान रहा है, रसूलुल्लाह की बात मान रहा है। हिस्सा दे रहे हो तो अल्लाह उसके रसूल की बात आप गोया मान रहे हो, आप अल्लाह रसूल के ताबे हो, फरमा बरदार हो, मुनकाद हो। जो मान ले, अल्लाह क्या कहते हैं, हम क्या देंगे, अल्लाह ने खुद वाज़ेह कर दिया, युदखिलहु जन्नातिन तजरी, अल्लाह इसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे से नहरें जारी, मंजर बड़ा बहीज, खुशगवार, खुशकुन होगा, बंगला, सामने नहरें हैं, जारी हैं, दूध की नहरें, शराब की नहरें, ऐसी जन्नतों में अल्लाह डालेगा किसको, जो हक देता हो। कई भाई हैं, बाप की वफात हो गई, बड़ा भाई पूरी प्रॉपर्टी लेके बैठ गया, कह रहा बीच वाले को मैं नहीं दूंगा, छोटे वाले को नहीं दूंगा। जितने हिस्से बताए गए, उन हकदारों को उनके हिस्से पहुंचा देने वाले जो लोग हैं, उनके बारे में अल्लाह ने क्या कहा, ऐसी जन्नतों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे से नहरें जारी हैं, और ये बड़ी कामयाबी है। और उसके आगे अल्लाह ने क्या कहा, 14 नंबर की आयत में अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह ताला ने कहा, और जो अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करे, यानी हिस्सा ना दे, अल्लाह ने जो हिस्सा बताया है, जो मुतय्यन फरमा दिया है, उन हिस्सों को उनके मुस्तहिकीन तक जो शख्स ना पहुंचाए, वो अल्लाह का भी नाफरमान है और रसूलुल्लाह का भी नाफरमान है। अल्लाह ने क्या कहा कि जो अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करे, यानी हिस्सेदारों को हिस्सा ना दे, काट दे। होता है एक शख्स है, वो अकेला तने तन्हा है, बीवी है, बच्चे नहीं पैदा हुए, उसके भाई भी हैं, भाई भी हैं, एक बेटी थी उसके पास। होना तो ये चाहिए था कि वो आधा प्रॉपर्टी का हिस्सा अपनी बेटी को दे दे, मरने के बाद बेटी को मिल जाएगा, और बकिया जो आधा बच रहा है उसके भाइयों को मिल जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई बेटा नहीं है। आधी प्रॉपर्टी उसकी एक बेटी है, उसको मिल जाएगा, और बकिया जो आधा हिस्सा बच रहा है उसकी प्रॉपर्टी का, उसके भाइयों में डिवाइड हो जाएगा। बेईमान हाजी भी है, नमाजी भी है, दामाद उसका आलिम दीन भी है। उसने क्या किया, मौत से पहले अपनी जिंदगी में पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम पर लिख दिया, पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम पर लिख दिया, और उस बेटी का जो शौहर है दामाद, वो आलिम मक्का से पड़ा हुआ। बेईमानी की इंतहा, माल कहीं से भी मिल जाए बस ले लो, ये मत देखो आप कि ये हलाल है हमारे लिए कि हराम है, तो ये तकसीम दुरुस्त और जायज नहीं है। यानी कोई भी शख्स, जैसे मैं हूं, अगर मेरे पास कोई बेटा नहीं है, बेटी है, एक है या एक से जायद है, तो याद रखिए मेरी मौत के बाद मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा मेरे भाइयों में भी बटेगा। जो मेरी मौत के वक्त जिंदा रहेंगे, सिर्फ बेटी के नाम पर लिख दूं तो ये जुल्म है, ये जौर है, ये नाइंसाफी है, ये शरीयत से बगावत, इससे बाज आने की जरूरत है। अल्लाह ताला हिस्सा बयान करके कहते हैं, जो हमारी बात ना माने, हमारी मुखालफत करे, नाफरमानी करे, और जो हमने हुदूद बताए हैं उनसे मुतजाविज हो जाए, आगे बढ़ जाए, मर्जी के मुताबिक काम करे, अल्लाह ने जो हिस्सा बताया है उसके अगेंस्ट में चला जाए, अपनी मर्जी से किसी को दे दे, किसी को ना दे, किसी को ज्यादा दे दे, किसी को कम दे दे, ये मुखालफत है, ये मासियत है। अल्लाह ने कहा जो मासियत करे, नाफरमानी करे, मैंने जो हुदूद बताए उनसे आगे बढ़ जाए, तो अल्लाह क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को मैं जहन्नम के अंदर डालूंगा, और हमेशा हमेशा वो जहन्नम के अंदर रहेंगे।
اور ان کے لیے रुसवा की अजाब है। अब आप सोचो, नमाज भी पढ़े हम, रोजा भी रखें हम, ज़कात भी दें हम, अच्छे अमाल भी करें हम, और बहनों का हक ना दें, हज भी कर ले, उम्रा भी कर ले, सब कर ले, और बहनों का हक ना दें। अब्बा जो दुनिया से छोड़ करके चले गए तो अब क्या ठहरेंगे? जालिम। जाना कहां पड़ेगा? जहन्नम के अंदर। अगर अल्लाह पकड़ ले, सजा दे दे, तो हमेशा के लिए जहन्नम में रहना पड़ेगा। और वयग़फ़िरु लिमन यशाअ, वयग़फ़िरु लिमन यशाअ के तहत जिसको चाहे अल्लाह बख्श दे, माफ कर दे। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिर्क के अलावा जिसको चाहे अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ कर दे। उसके तहत चाहे तो किसी और शक्ल में बदला दिलवा कर अल्लाह ताला माफ कर दे, और पकड़ ले तो उसकी सजा है कि दायमी तौर से जहन्नम में रहेगी, या एक लंबी मुद्दत तक जहन्नम में वो रहे। इतनी खतरनाक सजा है। तो पहला जुर्म जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या है? पहला बड़ा गुनाह, कबीरा गुनाह क्या है? कि हम लोग हक मारते हैं, बहनों को उनका हक नहीं देते। जिंदगी में आप अपने बेटों को बोल दो कि जिस दिन हमारी आंखें बंद हो गई उस दिन आप लोग हक ले लेना, हमारी बेटियों को भी हिस्सा दे देना। समझ रहे हैं आप? ये बोल के जाओ आप जिंदगी में, नहीं तो पकड़ हो जाएगी। ये मत सोचना कि मैं यहां आया हूं तो किसी खास मकसद के तहत मैं इस टॉपिक को लेकर के बयान कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मकसद नहीं, बस ये है कि बातें लोगों तक पहुंचे, लोगों की इस्लाह हो। एक इतना बड़ा गलत काम जो इंसान को दायमी जहन्नमी बना दे, उस पर बहुत सारे लोगों की नजर नहीं। उलमा भी उस अमल को अंजाम नहीं दे रहे हैं, अपनी बहनों को हक नहीं दे रहे हैं, फौजला भी नहीं दे रहे हैं, हुज्जाज भी नहीं दे रहे हैं, मदरसों से जुड़ने वाले जिम्मेदारान किस्म के वो भी नहीं दे रहे हैं। ये इतनी बड़ी कमजोरी है कि बड़े बड़े लोग दीन का ढिढोरा पीटने वाले तक इस जुर्म के अंदर शरीक है। इससे बाज आने की जरूरत है। ये पहला गुनाह है कि हम लोग हक मार लेते हैं। हक नहीं मारना चाहिए। आप खुद सोचो कि आपके घर में अगर 3 बेटे हैं तो वो तीनों की जो बीवियां हैं वो भी जहां से आई है ना, हिस्सा लेके आएंगे। और 3 बेटियां हैं, अगर आप हिस्सा दे रहे हो बेटियों को, तो 3 बहुएं आ रही वो भी हिस्सा लाएंगी। धीरे धीरे रिवाज दो बाबू, कम नहीं होगा, वरना अल्लाह के यहाँ गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। दुनिया में नमक रोटी खा के गुजारा कर लें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सहाबा कई कई रोज तक भूखे रहते थे, अल्लाह के रसूल कई कई रोज तक भूखे रहते थे। ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हलाल तर्ज जिंदगी को अपनाओ, गलत कारी से बाज आ जाए, किसी का हक ना मारे। ये पहला जुर्म है जिसके हम सारे के सारे लोग मुर्तकिब होते हैं। मैं बोलने वाला हमारे यहाँ बाप की माँ की जो भी कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टी है, ये वादा करता हूँ अफाजिल उलमा जो हमारे असातिज़ा के दर्जे में है, इनकी मौजूदगी में इंशाअल्लाह पूरा हिस्सा हम अपने बहनों को देंगे इंशाअल्लाह। और आप सबसे दरखास्त है मेरे दोस्तों भाइयों कि जहन्नम ना खरीदो। ये रोजा, नमाज, ज़कात, हज, ये हुकूकुल्लाह हैं। इनको अंजाम देकर आप हुकूकुल इबाद से पीछा नहीं छोड़ा सकते हो। जो बंदों के हुकूक हैं वो मुआफ नहीं किए जा सकते हैं जब तक कि बंदा खुद मुआफ न कर दे। बहुत संगीन मसला, इस पर बहुत संजीदा होकर गौर करने की जरूरत है। दूसरा जो बड़ा जुर्म हम लोग करते हैं, उलमा भी करते हैं और दूसरे अवाम जो है वो भी करते हैं। और क्यों करते हैं कि उलमा भी तहने नहीं जा पाते, बाज उलमा, सब नहीं, और जो अवाम है उनको भी हलाल और हराम का पता नहीं। ऐसा होता है, वो क्या है कि हम लोग ब्याज खाते हैं, ब्याज देते हैं लोगों को। कैसे देते हैं ब्याज? आपके घर में शादी है, बेटे की शादी, आपने क्या किया? सोनार के यहां ले जाके 2 लाख 3 लाख रुपया पहले से दे दिया, और क्या कहा? इस डिजाइन का जेवर बना के देना, भाव आजी का लगाना। 3 लाख दे दिया, 6 लाख दे दिया, 5 लाख, जिसकी जो ताकत है उसात है पहले से ले जाके आप दे देते हो। और जब शादी का मौका आता है तो आप जाकर के उससे जेवर लेके आते हो। ये जानते हैं क्या है? ये ब्याज की शक्ल है, सूद की शक्ल है, और सूद खाना खिलाना भयानक जुर्म है। ऐसे लोगों से ऐलान जंग की बात है। मुशरिकों के बारे में ये नहीं कहा अल्लाह ने कि आओ मुझसे और मेरे हबीब से, मेरे रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, ऐसा नहीं कहा। लेकिन सूदखोरों के बारे में अल्लाह ने क्या कहा? फअदनु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही,
اللہ اور اس کے مقدس رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک درہم چاندی کا ایک سکہ، اس کے بقد اس کی قیمت کا کوئی شخص سود کھاتا ہے، کھلاتا ہے، لیتا ہے، دیتا ہے تو 36 زنا سے بھی زیادہ خطرناک، 36 زنا سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یاد رکھو آپ، یہ جو گاڑی پر لون پر گاڑی لے لے کے گھومتے ہیں نا، یہ ہمارے نوجوان، یاد رکھو یہ جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں اپنے آپ کو، ان کو روکو۔ اگر کیش دے کر کے، مکمل قیمت دے کر کے کوئی گاڑی لانے کی طاقت نہیں ہے، سائیکل سے چلو، رکشے سے چلو۔ آپ لون پر گاڑیاں لا لا کر کے سود کھلا رہے ہو آپ، اگر وہ اس کی قیمت 1 لاکھ ہے، لون پر لانے کی صورت میں 20,000 30,000 بڑھ جاتی ہے قیمت اس کی، اور کوئی قسط اگر آپ وقت پر نہیں دے سکے تو ایکسٹرا چارجز لگا دیتا ہے سامنے والا سود خور آدمی، بینک والا، اور آپ کو دینا پڑتا ہے۔ یہ سب سود کی صورتیں اور شکلیں۔ تو بچی کی شادی ہو یا بچے کی شادی ہو، بہت اہم مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ، اگر آپ سوچے ہیں تو 100 میں 99 لوگ، یا ایسی بیماری ہے کہ 99 لوگوں کو لے کر کے جکڑ چکی ہے، جڑ بنا چکی ہے۔ 100 میں 99 لوگ اس سے محفوظ نہیں۔ کیا ہے وہ؟ چاہے بیٹی کی شادی ہو، چاہے بیٹے کی شادی ہو، شادی کی مناسبت سے یا یوں ہی کبھی بھی سونا خریدنا ہو، زیور خریدنا ہو، شادی خریدنا ہو، آپ جو ایڈوانس لے جا کر کے دے کے آتے ہو نا، یہ درست اور جائز نہیں۔ جب آپ پیسہ لے کے جاؤ، اس دن کا جو بھاؤ ہے، پیسہ دو اسی مجلس میں، اور اسی مجلس میں سونا لے لو، آپ بسکٹ لے لو، آپ زیور لے لو، آپ جو ڈیزائن پسند ہے اسی ڈیزائن کا لے لو۔ وہ کہتا ہے نہیں پیسہ آج دے دو، ایڈوانس دے دو، 4 روز کے بعد آؤ، اسی ڈیزائن کا ہم زیور بنا کے آپ کو دے دیں گے، یہ جائز نہیں ہے، سود ہے یہ سود ہے، اس سے بچو میرے بھائی۔ جس مجلس میں آپ نے روپیہ دیا، پیسہ دیا، اسی مجلس میں زیور آپ کو لینا ہے۔ اگر آپ نے پیسہ دے دیا، وہ کہہ رہا ہے 1 گھنٹے کے بعد آؤ، زیور لے کر کے جاؤ، 1 گھنٹے کے بعد کیا 10 منٹ کے بعد بھی اگر مجلس سے اٹھ گئے آپ، پیسہ دے کے اور چلے گئے کہ میں کچھ سامان لے کے آتا ہوں پھر زیور لے کر کے جاؤں گا، یہ بھی سود ہے۔ تاخیر معمولی ہو یا زیادہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ تاخیر سود تک انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ پیارے نبی نے کیا کہا؟ جب سونا خریدو، چاندی خریدو، اور چند چیزوں کا کھجور خریدو، اور ایسے ہی جو ہے نمک خریدو، جو خریدو، گیہوں خریدو، چاول کو بھی اسی پر بعض لوگوں نے قیاس کیا ہے، تو آپ تاخیر سے کام نہ لو، یدم بے یدی، ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے۔ سونے کو سونے کے بدلے میں خریدیں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں خریدیں۔ آپ سے ہم نے کہا کہ آپ مجھے 2 کلو گیہوں دے دیجئے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی 2 کلو گیہوں آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن آج آپ نے دے دیا اور میں آپ کو کل دوں گا، یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ 2 کلو میں دوں، 2 کلو آپ دو اسی مجلس میں، اور اتنا ہی، کیونکہ جنس ایک ہے۔ میں نے آپ سے کہا 2 کلو جو دیجئے، میں آپ کو گیہوں دے دوں گا، جو کی جنس الگ ہو گئی، گیہوں کی جنس الگ ہو گئی، تفریق کمی بیشی ہو سکتی ہے، مگر تاخیر ادھار جائز نہیں ہے۔ گاؤں میں چلتا تھا 5 کلو چاول آپ کے یہاں سے لائے، بنائے، کھائے، اور کچھ دن کے بعد لے جا کے پلٹا دیا آپ کو، یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ باریکیاں ہیں، لوگ نہیں سمجھ پاتے، نہیں جان پاتے۔ سونا جب بھی خریدنا ہو، کیا کرنا ہے آپ کو؟ لے جا کر کے رقم دو، اور رقم دے کے اسی مجلس میں آپ زیور لے لو، سونا لے لو، بسکٹ کی شکل میں ہے وہ لے لو۔ 1 گھنٹہ 10 منٹ بھی تاخیر درست اور جائز نہیں ہے، یاد رکھو۔ وہ کہتا ہے ڈیزائن نہیں، آپ جب تک ایڈوانس دو گے نہیں تب تک ہم اس ڈیزائن کا زیور تیار نہیں کریں گے۔ مارو 2-4 کنپٹ اس کو۔ بے ایمان، سینکڑوں ڈیزائن بنا کر کے تو رکھا ہے، ایک ڈیزائن اگر میرا مطلوبہ ڈیزائن اگر بنا کے رکھ دے گا، کون سی مصیبت پہنچ جائے گی؟ آسمان تیرے اوپر آ جائے گا۔ اصل میں یہ سود خور لوگ ہوتے ہیں، یہ آپ کے بھی دین کو چوپٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو دین و دنیا دونوں لحاظ سے کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو شریعت کا پتہ نہیں، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ بھی نہیں جانتے، اور الجھ جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں۔
تو بہرحال یہ جو بڑی کمزوری ہے اس کمزوری کو مد نظر رکھیں آپ اور باز آ جائیں. جب اللہ طاقت دے دے آپ کے پاس 50,000 روپیہ ہے, 1 تولہ نہیں آئے گا, بھائی جتنا آ رہا ہے لے جا کر کے دیجئے. اسی محفل میں آپ سونا لے لیجئے سیدھا سیدھا ڈلی کی شکل میں, یا زیور جو آپ کو پسند آئے وہ لے لیجئے, وزن کے حساب سے آپ لے کے آ جائیے اسی محفل میں, بعد میں نہیں, 1 گھنٹہ بعد, 2 گھنٹہ بعد, 1 دن بعد, 2 دن بعد, ایسا نہیں. ایک خامی اور ہے. خامی کیا ہے اور بھی تھوڑا سا غور کریں, یہ سمجھنے والی چیزیں ہیں جو کبھی کبھی لوگوں کی زبانوں سے نکلتی. کیا ہے وہ کہ پرانا سونا پرانا زیور, مائیں بہنیں بیٹیاں گھر کی بہویں سونا چاندی استعمال کرتی ہیں, کرنا چاہیے. زکات دیں, اگر 85 گرام تک زیور سونا پہنچ رہا ہے تو زکات دینا چاہیے. اس سے کم ہے تو فلا زکات آ گئی ہے, اس پر کوئی زکات نہیں ہے. اگر یوں ہی دے دے خوشی میں تو کوئی حرج کی بات نہیں. تو مائیں بہنیں بیٹیاں گھر کی بہویں زیورات کا استعمال کرتی ہیں, سونا پہنتی ہیں. 2 سال 4 سال پہننے کے بعد جب عورتیں جمع ہوتی ہیں, جھمکی بالا ترکی ترکا جب دیکھتی ہیں انگن کنگن, تو کہتی ہے تو پرانا ہو گیا, ابھی ڈیزائن نئے نئے آ گئے, اس کو بیچو. نئے نئے ڈیزائن آ گئے, دوسرے ڈیزائن کے خریدو آپ. تو 2-4 سال کے بعد مائیں بہنیں بیٹیاں سوناروں کے یہاں جاتی. اذان ہو رہی, پرانے زیور لے جا کے وہاں دیتی ہیں اور نئے زیور خریدنے کی صحیح اور کوشش کرتی. یہاں گڑبڑی کہاں ہوتی ہے, دیکھیں یہاں بھی بیاج آ رہا ہے. کیا ہوتا, سامنے والا سونار کہتا ہے کہ 15% ہم کاٹ لیں گے. ابھی 10 دن پہلے میں بھی ایک جگہ گیا, یہیں پر آنے سے پہلے بمبئی میں بھی گیا, اسی کے یہاں کا زیور اور سونا ہے, کہتا ہے 20% کاٹیں گے. بمبئی والا بولا, یہاں والا بولا 15% ہم کاٹ لیں گے. اب آپ سوچئے 100 گرام یعنی 10 تولے سونے زیورات کی صورت و شکل میں آپ لے کر کے پہنچے, کیا کہہ رہا ہے 15%, اس میں سے 15% کٹے گا. مطلب اگر 100 گرام ہے تو 15 کٹ کر کے کتنا ہو گیا, 85 ہو گیا. آپ پرانا سونا دے رہے ہو, نیا آپ کو لینا ہے. پیارے نبی کیا فرماتے ہیں, الذهب بالذهب, سونا سونے کے بدلے میں مثلاً بمثل, برابر برابر ہونا چاہیے. سواء بسواء, برابری ہونی چاہیے. یدم بیدن, ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے. ایک ہاتھ سے دو, دوسرے ہاتھ سے لے لو. پرانا سونا دے رہے ہیں, ہمارے سونے کو اس کی قیمت کو کم کر دیتا ہے, سمجھ رہے ہیں, کم کر کے بتاتا ہے, اور اپنے والے کو کہے گا یہ بہت 1 نمبر کا ہے, 1 نمبر کا, کہہ رہے اس میں ٹانکا لگا ہے, یہ لگا ہے. ایسا کر کے کھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چور ہے, بے ایمان قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہاں گڑبڑی کیا ہوتی, وہ 15% جو اس نے کاٹا نقصان بھی ہوا. نبی کیا کہتے ہیں, سونا نیا ہو پرانا ہو, 24 کا ہو 18 کا ہو 22 کا ہو, کیسا بھی ہو, ایک طرف کا سونا اعلیٰ درجے کا, دوسری طرف کا سونا اس سے ادنا درجے کا, کیسا بھی ہو برابری ہونی چاہیے. اس پر دلیل ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ عمدہ قسم کی کھجوریں ہیں, تناول فرما لیجیے, کھا لیجیے. برنی کھجوریں, اجوا سے بھی زیادہ اعلیٰ کوالٹی کی کھجوریں ہیں, آپ کھا لیجیے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہاں سے لائے بلال؟ کہا اللہ کے رسول عندنا ثمر ربیع, ہمارے پاس کچھ ربیع قسم کی کھجوریں تھی, ادنا درجے کی, لوور درجے کی, لوور کلاس کی. ان کو ہم نے 2 سا دے دیا ہے, اور سامنے والے نے 2 سا لے کر کے اور ہم کو یعنی 5 کلو لے کر کے 2.5 کلو دیا ہے, 1 سا دیا ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے کے لیے لائے تھے کہ نبی کو اعلیٰ درجے کی کھجوریں ہم کھلائیں گے. نبی نے کیا کہا, اوہ افسوس ہے بلال, عین الربا, عین الربا, یہ تو خالص بیاج ہے, یہ تو خالص سود ہے. جب تم کمتر درجے کی کھجوروں کو بیچ کر کے اعلیٰ درجے کی کھجوریں کھانے کا ارادہ کرو تو پہلے کمتر درجے کی کھجوروں کو رقم کے بدلے بیچ دو. بیعہ ببیع آخر, اس کو دوسرے انداز میں آپ بیچو, پیسے سے بیچ دو, کسی اور چیز سے بیچ دو. ثم اشتری بہ, اور پھر اس رقم کو لے کر کے وہ اعلیٰ درجے کی کھجوریں کھاؤ, خریدو. اب یہاں سود نہیں آئے گا, کمی بیشی تو ہو جائے گی, مگر سود کے مرتکب, کھانے کھلانے کے مرتکب آپ نہیں ہوں گے.
तो जब भी हमें पुराना सोना दे करके नया सोना जब लेना हो तो क्या करना चाहिए? ले जाकर के सोनार के पास उसको दो, कहो वजन करे, वजन करके उसकी कीमत क्या बनती है वो कीमत आप ले लो। वहां भी 15% काटेगा। बेईमान है वो। आप देखो लाल गाजर की तरह बने होते हैं, है ना, बहुत कमाते हैं, वहां भी 15% काटेगा। पहले भी काटता, अब भी काटेगा। आप क्या बोलो हमें कीमत लेनी है, पैसा लेना है, ये जेवर पुराने लीजिए, पैसा दीजिए, भाव वगैरह कर लीजिए आप, तब भी 15% काटेगा। आपका नुकसान तब भी है, मगर ब्याज खाने खिलाने वाले आप नहीं माने जाएंगे। ये जो जुर्म अजीम है, अल्लाह के नबी ने क्या कहा? सूद और ब्याज के 70 दरवाजे, 70 मरातिब है, 70 मदारिज इसके हैं। और सबसे कमतर दर्जे का सूद ये है कि हर रजुल उम्मा, कि आदमी अपनी मां से बदकारी करे। सोचो कितना खतरनाक जुर्म, कितना खतरनाक जुर्म। 15% तब भी काटेगा जब आप पुराने को दे करके नया जेवर, नया सोना खरीदोगे। और अब आप कह रहे हो कि नहीं ये पुराना जेवर है, इसको ले लो और हमें रकम दे दो, तब भी 15% काटेगा। लेकिन आप सूद खाने और खिलाने के मुर्तकिब नहीं होंगे, गुनाहे अजीम से बच जाएंगे, गुनाहे अजीम से बच जाएंगे। नुकसान तो है ही है। 4 बार बेच डालो पुराना सोना, पता चलेगा पूरी कीमत चली गई, पूरी कीमत चली गई। हो चुका है, हमने देखा है, जायजा लिया, तजर्बाती दुनिया से हम भी जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो ये बड़ा खलल हमारे यहाँ है, पुराना दे करके नया लेने में सूद खाते और खिलाते हैं, मगर एहसास नहीं होता है। उलमा भी कहीं ना कहीं बेचारे उलझ जाते हैं, और हमारे जो आवाम हैं ये भी कहीं ना कहीं लाइल्मी और जहालत की बुनियाद पर फंस जाते हैं। ये तीसरा खलल है। एक चौथी कमजोरी हमारे यहाँ जो है बड़े पैमाने की है, वो क्या है कि हम लोग जमीनों पर कब्जा करना बड़े पैमाने पर शुरू कर दिए हैं। जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, बस ताकत भर। कोई शख्स खेती कर रहा है, फजर की शिकायतें आती हैं लोगों की, लोग बताते हैं फजर की नमाज पढ़े, फावड़ा उठाए, चाय पियो, पहुंच गए खेत में, कुर्ता निकाला, टोपी निकाला, अब सारी चीजें हलाल हो गई, अब फावड़ा ले ले करके मेड़ छांट रहे हैं आप। प्यारे नबी ने क्या कहा? मन गय्यर मनाल अर्ज लान अल्लाहु अलैहि और लान अल्लाहु मन गय्यर मन सरक मनाल अर्ज। जमीन के निशान को, मेड़ ये निशान, उसको जो मिटाने की कोशिश करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस पर लानत होती, रब की लानतों का नुज़ूल होता, रब्बुल आलमीन की रहमतों से वो दिन ब दिन दूर होता जाता है। ये गुनाह का काम देहातों में बड़े पैमाने पर पाया जाता है, और ये जहन्नम की तरफ ले जाने वाला अमल है, इसलिए इससे बाज आ जाओ। एक शक्ल इसकी ये भी है कि आप है, आपका घर है, सामने पोखरा है, तो आज देखो न कुआं बचा, न पोखरा बचा, न सगरा बचा, न तालाब बचा, न कुलवा बचा, न नहर बची, कुछ नहीं, पूरा एकदम बस चले तो पूरा हिंदुस्तान पाट डली। ये सूरत हाल। ये क्या कर रहे हो आप? प्यारे नबी ने क्या कहा? मन ज़लमा क़ीद शिब्र मिन अल-अर्ज़ तुबिक़हु मिन सबई अरज़ीना। एक बारिश, एक हाथ नहीं, एक बीघा जमीन नहीं, एक 2 फीट नहीं, एक बारिश जमीन, एक बारिश बहुत मामूली, ये एक बित्ता जैसा कहा। इतनी भी जमीन अगर किसी की आपने गसब कर ली, जालिमाना तौर से आपने ले ली, तो जानते हैं प्यारे नबी क्या फरमाते? 7 जमीनों को तौक बना करके गले में डाल दिया जाएगा। अब 100 किलो का बोझा आपके सर पे लाद दिया जाए, हम जैसे कमजोर लोग बैठ जाएंगे, कुछ बहादुर लोग तने रहेंगे कि नहीं कोई टेंशन नहीं। 7 जमीनों को तौक बना करके गले में डाल दिया जाएगा, बर्दाश्त कर लेंगे आप? एक बित्ता, एक बालिश जमीन भी अगर किसी गैर की कोई आदमी ले ले तो सजा क्या है? जहन्नम में उसको जाना, जहन्नम में उसको जलना है। और बतौर सजा के 7 जमीनों को, ये पहली जमीन, इसके बाद दूसरी, इसके बाद तीसरी, जैसे आसमान 7 हैं ऐसे जमीनें 7, ऐसे जमीनें भी 7, 7 तबक जमीनों को हार बना के गले में तौक बना के अल्लाह डाल देगा। अब 100 किलो का बोझा हम लोग बर्दाश्त न कर पाए, 7 जमीनों की सकालत और इसके बोझ को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते? सोचो मेरे भाइयों, ये दुनियावी जिंदगी है, इसके बाद एक ऐसी जिंदगी शुरू होने वाली है जो दायमी है।
अबदी है, सरमदी है, सबसे कमतर दर्जे का। बस आखिरी बात, एक दो बातें और होंगी, आखिरी से कुछ पहले की ये बातें हैं। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? सबसे कमतर दर्जे का जो जन्नती होगा, सबसे कमतर दर्जे का, कितना मिलेगा जन्नत में? जितनी लंबी चौड़ी दुनिया है इससे 10 गुना और ज्यादा। प्यारे नबी ने कहा सबसे आखिर में एक शख्स निकलेगा, यखरुजु मिनन नारी कबवन, जैसे बच्चे बांके बांके चलते हैं, चलने की ताकत नहीं होगी, बदन का अक्सर हिस्सा जल करके खाक हो चुका होगा, कोयला बन चुका होगा, जमीन पर रेंगते हुए जहन्नम से निकलेगा। कहेगा अल्लाह अगर तूने जहन्नम से निकाल दिया है और तो अपने फजलो करम से जन्नत में डाल दे। दरखास्त करेगा, अल्लाह कहेगा उदखुल उदखुल जन्ना, जन्नत में जाएगा, सामने से देखेगा जन्नत को, आकर के अल्लाह से कहेगा अल्लाह जन्नत तो भरी हुई, जन्नत तो भरी हुई है अल्लाह, अन्नहा मला राइतुल जन्नता व अन्नहा मला, मैंने जन्नत को देखा इस हाल में कि जन्नत भरी हुई है। अल्लाह कहेगा इज़हब वदखुल जन्ना, मेरे बंदे जा जन्नत में दाखिल हो जा। 3 बार वो आएगा और तीसरी बार अल्लाह ताला क्या कहेंगे उससे? सबसे कमतर दर्जे का जन्नती, जो सबसे लास्ट में जहन्नम से निकलेगा, सबसे आखिर में जन्नत के अंदर दाखिल होगा, ख्याल आएगा युखय्यलु इलैहि अन्नहा मला, कि जन्नत में कोई सीट नहीं, सब बुक, वेटिंग लिस्ट में नाम इसका आ जाएगा। ऐसा ख्याल दिलाया जाएगा इसको कि जन्नत भरी हुई है। तीसरी बार आकर के कहेगा अल्लाह जन्नत तो भरी हुई। अल्लाह कहेगा जा जन्नत में दाखिल हो जा, जन्नत में अभी तुम्हारे लिए इतनी जगह है कि जितनी उसात के साथ ये दुनिया थी जहां से होकर के आया है, वह अशरतु अमसालिहा, बल्कि दुनिया से 10 गुना ज्यादा है। ये सुन करके बंदा क्या कहेगा? अल्लाह मुझ गरीब का मजाक उड़ा रहा है, अतहज़उ बी व तज़हक व अंतल मलिक, अल्लाह तू बादशाह है, रब्बुल आलमीन है, जन्नत जहन्नम का खालिक है, सारी कायनात का पालनहार है, अतहज़उ बी, अल्लाह तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, अल्लाह तू हंसी कर रहा है, जन्नत पूरी भरी हुई है और आप कह रहे हो कि दुनिया से 10 गुना ज्यादा वसात के साथ अभी और है, और दुनिया से 10 गुना ज्यादा वसीओ अरीब जगह अभी और बाकी है और जन्नत तो भरी हुई लग रही। अल्लाह कहेगा जा। प्यारे नबी जब इस हदीस को बयान करते तो आप मुस्कुराते हंसते थे आप। अब आप सोचो, एक बालिश के लिए लाठी चला लेते हैं, गर्दन काट देते हैं, झगड़े हो जाते हैं, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, बाप बेटे का दुश्मन बन जाता है, और दुनिया में जन्नत में जब हम लोग पहुंचेंगे इंशाअल्लाह, तब दुनिया से 10 गुना ज्यादा वसी और अरीज जगह जन्नत में मिलेगी। प्यारे नबी ने कहा ज़ालिका अदना अहलिल जन्नति मंज़िलतन, ये जन्नत का सबसे कमतर दर्जे का आदमी होगा, इसलिए उस जन्नत की कोशिश करें, अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करें, सबकत करें और जन्नत की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक आखिरी बात क्या है कि दीन से हमारे यहाँ बेजारी बहुत ज्यादा है, मस्जिदों से दूर हैं, हर कोई शख्स अपने अपने में मस्त है। सुबह उठे, और सुबह कहाँ उठते हैं, हमारी सुबह तो 9 बजे यहाँ होती है, बंबई में 11 बजे सुबह होती है, 12 बजे किसी की, जो जितने पैसे वाला है उसकी सुबह उतने लेट में होती है। कोई 2 बजे जागता है, कोई 3 बजे बेदार होता है, कोई 11 बजे बेदार होता है। छोट पुजिया किस्म के जो लोग हैं बेचारे 10 बजे भागते हैं कामों की तरफ। तो जो जितना ही बड़ा सेठ है और दीन से बेजार है, उसकी सुबह उतनी ही ताखीर से होती है। और गांव में भी आमतौर से जब सूरज निकल जाता है तब हम लोग जाते हैं। मैं इसी जगह पे अभी कुछ दिनों तक रहा जहां अक्सरियत गैरों की है, तो मैंने क्या देखा कि फज्र की नमाज के लिए जब मस्जिद में हम लोग आते हैं, 5 बजे जमात है, कहीं सुबह में 5:10 पर जमात है, तो हमने देखा कि गांव के कुर्मी लोग हैं, हिंदू गैर मुस्लिम, और रोड पर गश्त कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। उनकी औरतें भी रोड के किनारे हाईवे बर्डपुर के आगे, और उनके बच्चे भी, उनके मर्द भी दौड़ रहे हैं। जब हम लोग सोते हैं तो वो लोग जागते हैं, और जब हम लोग रात में बैठ के कचहरी करते हैं तो वो लोग सो जाते हैं। नबी ने क्या कहा? ईशा के फौरन बाद सो जाओ, है ना, ताकि फज्र में आसानी हो। तो दीन से बेजारी का एक माहौल पूरे तौर से कायम। मैं जगह जगह मुख्तलिफ गांव में गया तो क्या देखा, 2-4 बूढ़े बेचारे यही इज्जत संभाले हुए गांव की,
मस्जिदों को आबाद किए हुए हैं, और बकिया जितने चैंपियन किस्म के नौजवान हैं, कोई गुटखे में मस्त है, कोई मुनशियात का आदी है, कोई मोबाइल में रील बना रहा है, कोई फेसबुक पे चैट कर रहा है, कोई व्हाट्सएप में मगन है। बस सिर्फ बूढ़े चार छा बेचारे मस्जिदों में आते हैं और जवान यहाँ वहां गायब है, और फिर कहते हैं योगी मार रहा है, फलाने मार रहा है, ऐसा हो गया है, वो आफत आ गई। ये सूरत हाल, ये दीन बेजारी, इससे बाज आ जाए। ये आप समझ लो कि दीन से दूर होकर न इज्जत मिल सकती है, न दौलत मिल सकती है। इस पर बड़ी सारी बातें कही जा सकती हैं। बस एक आखिरी आयत पढ़ करके मैं अपने खिताब को खत्म करता हूँ। वो आखिरी आयत क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन वनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। अगर आप चाहते हो कि इज्जत मिल जाए, आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी खुशगवार हो जाए, घर में भी चैन, बाहर भी चैन, बच्चे भी आपके फरमा बरदार बन जाए, अगर ये आपकी चाहत है, दिली जज्बा है, तो याद रखो अल्लाह ने क्या कहा, जो मेरे जिक्र से, मेरे कुरान से, कुरान की तिलावत से, मस्जिदों से जो कोई शख्स, इबादतों से जो कोई शख्स एराज करे, मुंह फेरे, अल्लाह कहते हैं हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे। रात भर कमाओ, रात भर दुकान पर बैठो, सुबह में जाओ और देर रात आप घर की तरफ दुकान से लौटो, अल्लाह दुनिया में जलील करके छोड़ेगा। याद रखो आपकी जिंदगी खुशकुन नहीं हो सकती है, आपकी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता, इत्मीनान नहीं आ सकता। आप किसी का इलाज करवाओगे, वो अगर सही हुआ दूसरा बीमार हो जाएगा, कहीं कोर्ट का मसला, कहीं पुलिस स्टेशन का मसला, कहीं और दिक्कतें, ये दिक्कतें आती रहेंगी। अल्लाह कहते हैं जो मेरे जिक्र से, मेरी इबादतों से जो रूह गर्दानी करे, एराज करे, मुंह फेरे, नमाज तक ना पढ़े, अल्लाह का जिक्र ना करे, मस्जिदों से अदावत और दुश्मनी पैदा कर ले, ऐसे लोगों की जिंदगी को हम तंग कर देते हैं। अल्लाह कहते हैं हम तंग कर देते हैं, और कयामत के दिन जब हम उन्हें उठाएंगे अंधा बनाकर उठाएंगे। अगर जिंदगी खुशहाल जिंदगी चाहिए, इत्मीनान चाहिए, सुकून चाहिए, माल चाहिए, इज्जत चाहिए, तो सालेह अमल कीजिए, मस्जिदों से जुड़ कर रहिए, मस्जिदों में खिदमत कीजिए, आप अल्लाह वाले बन जाइए, उलमा के रास्ते में रहिए। अभी आपको मालूम नहीं है, मुहाने में एक मिठाई वाला है मशहूर, उसके बाजू में एक शख्स है, शकीली बन गया, कादियानी बन गया, एक नौजवान, बाप डॉक्टर है, कई एक उसके जो है लड़के हैं, उन्हीं में से एक लड़का लखनऊ पढ़ते पढ़ते कादियानी बन गया है। कहता है बिहार का एक भगौड़ा है, औरंगाबाद मुंबई के आसपास में रह रहा है। उसका लड़के का क्या कहना है, वो ईसा भी है, वो महदी भी है, ईसा और महदी अलैहिस्सलातु व तस्लीम दोनों उस बेईमान को मान रहा है। हमारे कई एक अहले हदीस उलमा बेचारे गए, मैं भी गया। बाप ने कहा, वो बच्चा बोल रहा है कि बार बार टार्चर करवा रहे हो, तो मुझे शायद थोड़ा 10 दिन रुक जाओ, फिर इंशाअल्लाह आप बताओ, उसको समझाओ। मेरे जाने से पहले कई एक अफाजिल उलमा जाके समझा चुके, मगर हलक के नीचे बात नहीं उतर रही, ऐसे गुमराह हो जाते। आपके गांव का एक शख्स, आप जानते हैं हमारे कई एक मामू वगैरह यहाँ हैं, एक शख्स जा करके भिमंडी में पीर बना हुआ है, लंबे लंबे बाल है, पैसा कमा रहा है, मजार की पूजा कर रहा है, कब्र पुजवा हो गया। जानते हैं आप, ऐसे गुमराह हो जाते। सिराज नाम है, सिराज, बेईमान एक नंबर का, पैसे कमा रहा है, इबादत करवा रहा है, पीरी मुरीदे के चक्कर में फंस गया है, पैसे के चक्कर में। ऐसे हमारे अहले हदीस गांव के नौजवान जो मकतबों से जुड़े नहीं हैं, उलमा से जुड़े नहीं हैं, जिनके पास दीन का मुनासिब इल्म नहीं है, बंबई में गए, पूना में गए, कलकत्ते में गए, कहीं और गए, वापी में गए, गुमराह हो गए, गुमराह हो गए। इसलिए इल्म भी आप सीखो, उलमा से राब्ते में रहो, जुड़ कर रहो, उनसे मालूमात लो। आप जानते हैं सामने मधुबनिया के सामने पिपरी एक गांव, एक अहले हदीस शैतान बन गया, उसने अपनी जमीन को देवबंदियों के हवाले कर दिया। अब आपके कटियाल जैसा इदारा है, इसी जैसा इदारा बना के खड़ा कर लिए, और हमारे आप जैसे बेगैरत लोग अपने अपने बच्चों का ले जाके वहां एडमिशन करा के रखे कि तालीम बड़ी अच्छी हो रही, देवबंदी बना रहे हैं, जा जाके हनफी बना रहे हैं, शुरू से गुमराही फैला रहे हैं। ये बेगैरती नहीं है, ये मनहज से लाइल्मी का नतीजा नहीं है।
उलमा से जुड़ कर रहो, दीनी गैरत रखो, तड़प रखो, घरों पर जा जाके लोगों को बुलाओ, दीन से जोड़ो। ये इज्तिमा सिर्फ काफी नहीं है, अल्लाह के यहां भी इज्जत है और दुनिया में भी इज्जत है। अल्लाह ताला सुरखुरू फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला जितने भी हमारे इख्वान यहाँ जमा हैं, इन सब की नेक ख्वाहिशात की तकमील फरमा दे। अल्लाह हम सब कमजोर हैं, गुनाहों में लिथड़े हुए हैं, सर से पांव तक गुनाह ही गुनाह। अल्लाह हम सबके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देना। अल्लाह क़यामत के दिन हम सबको कामरानी सरफराजी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुश कर देना। अल्लाह अपने चेहरे पुर अनवार का दीदार करवा देना। आमीन। मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुकद्दस हाथों से हौज़े कौसर का जाम हम सबको अल्लाह नसीब फरमाना। अल्लाह जितने भी हमारे भाई हैं, इख्वान हैं, इनको मस्जिद से जोड़ दे। 5 वक्ता पाबंदी के साथ नमाजों के एहतमाम की अल्लाह इन सबको तौफीक दे दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।